Yeah, we can just wait for a couple of minutes because then the meeting Okay. is blocked. But Okay. so you can maybe just summarize from last time. If anybody has Okay. any questions, I don't know if any one of you tried the movements from last time. Yeah, if you have any questions, you could probably type it in the chat box and Yeah. Archana could just read them out. I'll just answer, and while we wait for the others to join us. Yeah. So I just want to repeat what I said the other day, that these days, this lockdown and this corona, the most important two things that we have to do are: one, concentrate on the food that we are eating, and two is exercise. Exercise is also, exercise is particular to a particular body or a particular kind of exercise like dance or Zumba or aerobic. But more than that, what is important is moving. So every 2 hours we must do some movement, whether it is moving our arms or legs or just walking up and down. Some movement has to be there because we are not really going out of the house. The movement is extremely important. And doing pranayama. I think if you heard or you're hearing a lot of people on different devices and on the internet and on TV, we have to really improve our immunity. And for that, improving, working your muscles, working your joints, eating good food, all these things are very important. But my main focus is on simple movements. For people who find it difficult to get on the mat, योगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग मैट के ऊपर जमीन पर नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये मूवमेंट्स बहुत ही जरूरी. So today I'm going to focus on the upper body, our head and neck and arms and our wrists and our shoulders. और ये आप कभी भी कर सकते हो, बस खाने के 2 घंटे का गैप होना चाहिए कोई भी करने से पहले. लेकिन इसमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसी है, जैसे अगर आपने हल्का सा ब्रेकफास्ट किया है तो आप उसके आधे पौने घंटे बाद भी कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग वी आर नॉट रियली वर्किंग ऑन आवर एब्डोमेन, just going to be working on our arms and on our head and neck. लेकिन before we start, I would like to say कि हमारी जो body है, सबकी body अलग है. We must respect our body and listen to our body. Our body tells us when it is uncomfortable. So अगर हमें लग रहा है कि ये exercise हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमें बिल्कुल उसी वक्त रुक जाना है. So please do listen to your body before doing any exercise. And if you have any physical ailments, then you have to be more sort of careful about what exercises you all are doing. But another thing is, this is in chair yoga or chair exercises. The chair has to be very sturdy. And if it is a plastic chair, try and keep it on a little carpet or a mat so that it doesn't slip. If it's a wooden chair, then it is fine because wooden chairs are heavy. But if it's a plastic chair, please put it on a nice thick carpet or a rug so that it doesn't move. And always sit properly with your back of your body, your right next to the back of the chair. Try and sit absolutely straight. So shall we start, Archana? Yeah, I'll just do a quick check. Can everybody Okay. see Jyoti? I mean to say, I just saw a couple of messages that they can't see. I just want to check. Can't see the video. Okay. There are a couple of people who are saying they can't see the video. Please check. Meenakshi, can you see the video? Yes. Yes. Meenakshi? Yes. Yeah. Yashri can see the video. Yes, from the laptop. I think there is a phone bandwidth issue because that's what happened last time also. People had problems.
because they were looking at it from their phones. So, can you guys see me, or you can't see me also? Ravina, can you see me? Okay. Mr. Hardev, you can't see me. आपका वीडियो ऑफ तो नहीं है ना? आप वीडियो देख लीजिए अपना. Okay, good. Hi, Indra. So some people were logging in from the video. They are, from the laptop. It's a good connection. Fortunately, on the phone, it's not a very good connection. Please bear with us. If you can shift to a laptop, please go ahead and do that. But I think we'll start with the session, and this is going to be recorded. So in case you can't see it, then I'll put it on YouTube and you can always follow it up later. So Jyoti, you can start the session. Okay. Namaste, everyone. Once again, it gives me great pleasure to be here with you today. There are some tech issues, and we are trying to sort it out. Last time, I tried it from the mobile, and I don't think it really works. So today, I'm trying the laptop. Hopefully, we shall be able to deal with this issue and analyze everything in this session. And if there are problems, maybe we can completely do away with it in the next session. So just sit comfortably on your chairs. सर वीडियो तो आ ही नहीं रहा मैडम. आपका वीडियो नहीं आ रहा. सर वीडियो फॉर लैपटॉप पे आएगा, आपको लैपटॉप पे देखना पड़ेगा. लैपटॉप तो मेरे पास है ही नहीं. हाँ जी, तो अभी आप सुन लीजिए सर, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत आ रही है. ठीक है. तो Saad, can you see the video? Saad is on the laptop. चलिए मैं सुन लेता हूँ जो बोल रहे हैं. Okay, so somehow some people can see, sir, it's a bandwidth issue. It's not. It's very fluctuating. So I've just got a request that I should introduce Jyoti again. I'm going to mute everybody so that, and I'm going to lock the meeting now. There's a lot of disturbance. So Jyoti is a gentle yoga expert, and she has been teaching senior citizens gentle yoga moves. And she has been associated with Vedna. In the past, she has done quite a few sessions for our senior citizens. And we are doing this webinar. This is the second webinar we are doing as a part of the series to. So today she'll be covering the upper body movements. First session's video is there on our YouTube channel, and it was there in this invite which I sent. You can always refer back to that. I'll request you all to please mute yourself if you don't mind. So Jyoti, you can continue. Yeah. So once again, I'm back, and आज का हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन सबसे पहले कुछ भी करने से पहले लेट्स सेंटर आवरसेल्व्स. और एक आज हम एक इरादा बना लेते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं. तो अपना हाथ नमस्ते पोजीशन में लाइए, आराम से कंफर्टेबली अपनी चेयर पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एक दो गहरे सांस लीजिए. टेक डीप कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स. नाक में से सांस लीजिए और नाक में से ही बाहर छोड़िए. फिर से इनहेल एंड एक्सहेल. एक बार फिर इनहेल एंड एक्सहेल. और हमारी इंटेंशन क्या है आज, हमारा इरादा क्या है?
तो ये अगले अभी हमारे 18-19 दिन और लॉकडाउन के बचे हुए हैं। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमें ये इरादा आज हम फिक्स करते हैं कि आज हमारा 16 अप्रैल है। ये जो 3 हफ्ते, अगले 3 हफ्ते हम रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। चाहे आप उसको 2-3 हिस्सों में बांट लीजिए, सुबह 7-8 मिनट, फिर शाम को 7-8 मिनट। 20 मिनट आपको घड़ी को देखकर आपको ये इरादा आज बनाना है कि हम रोज एक्सरसाइज करेंगे 20 मिनट। चाहे कुर्सी में, हमें तो कुर्सी में बैठ के करना है, आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं। आप इनफैक्ट, आज तो मैं सिर्फ अपर बॉडी कर रही हूँ, लेकिन अब आगे जब हम लोअर बॉडी करेंगे, हम किचन में भी खड़े हुए, बैल्कनी में अगर हम खड़े, वहां पर भी कर सकते हैं एक कुर्सी रख। सो आज का हमारा इंटेंशन है कि हम रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करें। और इसी के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने हाथ नीचे रख लीजिए अपनी थाइस के ऊपर, और हाथ ऐसे रखने हैं जैसे आपके हाथ पाम्स जो हैं वो थाइस की तरफ। और अब आप गहरा सांस लीजिए, इनहेल, और अपने हाथों को ऊपर लाइए। फिर एक्सहेल, हाथ नीचे। फिर इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। कॉन्शियसली हमें सांस लेना है। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, हाथ नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल, हाथ ऊपर और हाथ नीचे। और इसके बाद हम करेंगे बेली ब्रीदिंग। अब बेली क्या, मैं थोड़ा खड़े होकर आपको दिखा देती हूँ। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो सो रहे होते हैं तो उनकी बेली कितनी ज्यादा ऐसे, जब वो सांस लेते हैं तो कितनी फुल हो जाती है जब वो सांस लेते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी जो है ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हम लोग बिल्कुल ऐसे झुकने लग जाते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, गैजेट पे रहते हैं। इसलिए आज हम क्या करेंगे, दोनों अपने हाथ अपनी एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, मींस जहां हमारा नेवल है उसके ऊपर। और जब आप सांस अंदर लोगे तो बेली बाहर आनी चाहिए। उल्टा करते हैं सब लोग। सो अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं दिख रही हूं तो अब मैं बहुत गहरा सांस लूंगी, और अगर आप देख सकते हैं तो मेरी बेली बाहर आ रही है। और जब मैं सांस छोड़ूंगी तो बेली भी अंदर जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सांस अंदर आप ले रहे हो तो बेली बाहर आनी चाहिए, कि आप अंदर हवा ले रहे हो। और जब हवा कम हो रही है तो बेली पीछे जानी चाहिए। तो ये जब आप बैठे बैठे भी हो, अपना दोनों हाथ अपनी बेली के ऊपर रखो, नेवल के थोड़ा सा ऊपर, और सांस लो। और देखो बेली आपकी, पेट आपका बाहर की तरफ आ रहा है। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, बेली बाहर, एक्सहेल, बेली अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन बेली बाहर और बेली अंदर। ये जो एक्सरसाइज है हम लेट के भी कर सकते हैं, और सोने से पहले अगर हम ये थोड़ा थोड़ा करें तो इसमें हमें अच्छी नींद आने में भी बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए एक लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल, बेली बाहर, और एक्सहेल, बेली अंदर। और अब हम करेंगे एक सिंपल प्राणायाम, मेजर्ड ब्रेथ, जिसका मतलब है कि हम 6 काउंट के लिए इनहेल या सांस लेंगे, 2 काउंट को सांस को रोक के रखेंगे, और फिर 6 काउंट में सांस को रोकेंगे, छोड़ेंगे। सो लेट्स इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अगर आप 4 काउंट करना चाहते हैं, 4 भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद 4। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल। आंखें बंद कर सकते हैं। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल, hold your breath,
एक्सहेल। अब बस अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर 1-2 गहरे सांस लीजिए। उस दिन मोदी जी ने भी कहा है कि प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें प्राणायाम करना चाहिए। और अब रिसर्च भी हो रही है कि कैसे प्राणायाम और योगा से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा का, वो भी रिसर्च कर रहे हैं कि योगा और ये सब चीज़ों से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये सिंपल है। सो हमने 3 तरह के प्राणायाम किए हैं, छोटे छोटे प्राणायाम। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने बेली ब्रीदिंग की है, कि हम अपनी बेली से सांस लेंगे। तो बेली बाहर और अंदर आप 6 से 8 बार इसको कीजिए। फिर आप एक मेजर्ड ब्रेथ कीजिए, जिसका मतलब 4 काउंट को इनहेल, 2 काउंट को होल्ड और 4 काउंट को एक्सहेल। और तीसरी हमारी जो थी वो बहुत ही सिंपल, जब आप सांस लेते हो तो हाथ ऊपर और जब सांस छोड़ते हो तो हाथ नीचे। तो आज हमने 3 प्राणायाम। अब हम आ जाते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हेड और नेक। और आजकल इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हम इतना टीवी देख रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, तरह तरह की न्यूज हमारे चारों तरफ आ रही है हमें। और कुछ ठीक न्यूज है, कुछ नहीं है। हम लोग अपने नियर एंड डियर वंस को नहीं मिल पा रहे हैं। वी कांट मीट आवर फैमिली मेंबर्स। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं 88 इयर्स के, मैं उनको नहीं मिल पा रही। तो ये सब चीजों से हमारे हेड और नेक के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो इसलिए हेड और नेक की एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे, आप अपना राइट वाला अंगूठा सामने रखिए। राइट अंगूठा की जो टॉप है वो आपकी आईज की सीध में होना चाहिए। जैसे मैं साइड से दिखाती हूँ, तो आप अपनी आईज को थंब की टॉप पर देख रहे हैं, जो उसका नाखून है। फिर जैसे जैसे वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, आप हल्के से, आपकी गर्दन भी लेफ्ट साइड में जा रही है और आप कंटिन्यूसली थंब को देख रहे हैं। फिर दोबारा से आपका हाथ सामने आ रहा है, आप फोकस कर रहे हैं अपने थंब के ऊपर। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बाहर, आप आंखें झपक सकते हैं। फिर दोबारा से राइट इन फ्रंट, हाथ नीचे, राइट हैंड अप, राइट थंब हमारा ऊपर है और आप थंब को देखते जा रहे हैं और अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जा रहे हैं। सांस लेते रहिए, फिर वापस सेंटर में, फिर राइट और फिर वापस। इससे माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी होता है और हमारी आंखों को फोकस मिलता है, जो आजकल हम इतना टीवी देख रहे हैं, वो हमको रिलैक्स करेंगे हमारी आईज को। और अब हम सिर्फ ऐसे करेंगे जैसे हम कुछ झटकते हैं। सो अपनी दोनों हाथ को लेके 4 बार उसको ऐसे झटकना। फिर बाहर ले आइए आर्म्स को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी आर्म्स की है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि सारा दिन हम ऐसे बैठे। सो अब हम करेंगे इसके बाद नेक रोटेशन। मैंने उस दिन भी बताया था कि वी शुड नॉट रोटेट आवर नेक लाइक दिस, जैसे हमारी एज होती जाती है, क्योंकि इससे चक्कर आने का डर। Instead of that, rotate your head like the hands of a clock. So थोड़ा सा सिर ऊपर कीजिए, जैसे आप 12 को देख रहे हैं, 12 बजे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब रिवर्स, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 12। एक बार फिर करेंगे इन द क्लॉकवाइज, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें चक्कर आने का कोई डर नहीं है। अब रिवर्स और सांस लेते रहिए, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड। अब दोनों अपने हाथ लेके उनको थोड़ा सा रब कीजिए और अपनी गर्दन के पीछे रखिए और हल्के से पीछे अपनी गर्दन को ले जाइए। और फिर सांस लेते हुए सेंटर, हाथों को नीचे लाइए। और अब हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हमारे नेक के 3 मूवमेंट होते हैं।
हमारा जो नेक है ये लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, बैक जा सकता है, फ्रंट और रोटेशन। तो ये हमें सारे मूवमेंट्स अपनी डेली हमको इसकी प्रैक्टिस करनी। सो अब हम करेंगे समथिंग नोन एज यस, नो एंड मे। तो हम यस करते हैं, हेड गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एंड नो कैसे? लेफ्ट एंड राइट, बहुत धीरे से, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लास्ट टाइम लेफ्ट एंड बैक टू सेंटर। और अब हम करेंगे समथिंग नोन एज मे बी, शायद, मतलब लेफ्ट ईयर टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर, सेंटर, right ear to right shoulder, center, left ear to left shoulder, center, right ear to right shoulder, center. और फिर से एक बार हाथ को रब कीजिए और अपनी गर्दन के पीछे उसको ऐसे इंटरलेस करके गर्दन के पीछे रखिए और हल्के से पीछे देखिए, से आपकी नेक को बहुत सहारा मिलता है। और हाथ वापस। And now we will do an exercise which is very good for the arms. तो दोनों हाथ नमस्ते पोजीशन में और फिर एक हाथ राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। आप देख रहे हैं ऐसे डायगोनल, राइट हैंड ऊपर, look at your right hand and now look at your left. Once again, look at your right hand, look at your left. And now opposite, left hand up and right hand down. Look at your left hand, now look at your right hand. This is mind body coordination, left hand and right hand. We'll do it one more time. Right hand upper, look at your right hand, and now look at your left hand. Once again, left hand, and look at your left hand. And last time, left hand upper, right hand नीचे. Left hand को देखिए, फिर राइट हैंड को देखिए, फिर लेफ्ट हैंड को देखिए और फिर राइट हैंड। और अब जस्ट गिव योर शोल्डर्स अ हग। एक ही बॉडी है हमारे पास, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कभी अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं कि हमारे ऑर्गन्स 24/7 जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में लगातार काम करते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा प्यार उनको देते रहना चाहिए। सो नाउ जस्ट ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड। मसाज हिंदू फिलॉसफी और हिंदू ट्रेडिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मसाज कीजिए, ऐसे हल्के से अपने हाथ को, अपनी आर्म्स को प्रेस कीजिए। राइट हैंड, फिर एक बार लेफ्ट और फिर। अब ये जो हमारी ये वाली जो हिस्सा है जो हमारे जॉइंट्स, ये नेक और शोल्डर और ये इसको मिलाता है, इसको बोलते हैं SCM। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है और हम क्योंकि इतना ज्यादा गैजेट में रहते हैं इसके ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है। सो अपने हाथ को ऐसे रखिए, एक हाथ के ऊपर एक हाथ, और इसको यहाँ रखिए लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक एंड लुक एट योर राइट शोल्डर। आपको यहाँ थोड़ा सा हल्का सा महसूस होगा अ पुल, फिर सेंटर, फिर लुक एट योर राइट शोल्डर। आपको यहाँ भी पुल आ रहा होगा, एक स्ट्रेच मिल रहा है। दिस इज वेरी गुड फॉर पीपल हु आर ऑन देयर लैपटॉप्स। This is known as the SCM stretch, and back to center. Now on the other side, keep both your palms on the side of your neck and look at your left shoulder. And back to center. Left shoulder, you can feel the stretch, and back to center. These are scientific exercises. My teacher, who is in the US, has been doing chair yoga with senior citizens for the last 15 years. She's one of the best gentle chair yoga experts, and I have attended her class. And this is one of the best exercises for people who sit on their laptops and are on their gadgets for a long time. So once again, just press your shoulders. And now we come to something known as Namaste hands. Bring your hands in Namaste position. Take it to the left.
bring it to center, take it to right, bring it to center, take it to left, bring it to center, take it right, and bring it to center. Now take it above your head and down. We'll do this 6 times, 2 and down, 3 and down, 4 and down, 5 and down, 6 and down. Just put your palms back on your thighs and rotate your shoulder. Left shoulder up and back, front, up and back, front, up and back. Now reverse. पहले पीछे, फिर ऊपर और फिर सामने. पीछे, ऊपर और सामने. पीछे, ऊपर और सामने. Now the right shoulder, just rotate it. ऊपर जाएगा, फिर पीछे, फिर नीचे, फिर ऊपर, पीछे और नीचे. फिर एक बार और. आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं रोज, नहीं तो धीरे धीरे करना ही अच्छा है शुरू में. एंड नाउ वी विल डू समथिंग व्हिच इज नोन एज द फ्लेक्सिंग ऑफ द हैंड्स. तो हमारी जो फिंगर्स हैं, जब मेरे नाना नानी के यहाँ हम लोग देखते थे, वो लोग कितना काम करते थे अपने हाथ के साथ. अब क्या हो गया कि हम बहुत कम फिजिकल लेबर करते हैं, फिजिकल काम. सो हम भूल गए हैं, हमारी फिंगर्स को प्रैक्टिस नहीं है. इतनी जॉइंट्स हैं हमारे हैंड्स में. सो आज हम इनको थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे. जितनी आपकी फिंगर्स खुल सकती हैं उतना खोलिए. आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जितनी फिंगर्स एक दूसरे से दूर है, और ऐसे प्रेस करो जैसे आप दीवार में प्रेस करो. सांस लीजिए, प्रेस कीजिए सामने की तरफ. फिर एक बार सांस लीजिए, एक्सहेल, प्रेस. सांस लीजिए, एक्सहेल एंड नाउ इंटरलेस योर हैंड्स और उनको उल्टा करो और प्रेस. फिर से एक बार इंटरलेस योर हैंड्स. हाथ को ऑपोजिट साइड में प्रेस करो, हेड को थोड़ा सा बेंड करो एंड बैक. एंड नाउ वंस अगेन शेक आउट योर हैंड्स. इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है एंड फिंगर्स को एक्सरसाइज मिलती है. और अब आपको उंगलियों को खोलना है और बंद करना है, ऐसे जैसे आप कुछ फेंक रहे हो. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And now just bring your hands back. Just rub your hands together. थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस हो रही होगी. Just rub your arms. And now, keeping your hands in Namaste position, we'll do something which is known as the shove. इस जैसे हम किसी को कोहनी से धक्का मारते हैं. सो आप ऐसे रखिए अपना हाथ और ऐसे, और शोल्डर में फील कीजिए कि आप उस शोल्डर में फिर से 3, 4, 5 and 6. Now the other side. 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और वापस मैं बैठ जाती हूँ. एंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी लाइफ फोर्स या प्राणा जिसको कहते हैं. प्राणायाम उसी प्राणा से बना है. लाइफ फोर्स का मतलब है हमारी बॉडी को ऐसा फील होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सी मतलब प्राणा है. प्राणा ही हमें जिंदगी देता है. और प्राणा हमें खाने से मिलता है, सूरज से मिलता है, एक्सरसाइज से मिलता है. जब हम ब्रीथ करते हैं, प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं. सो दोनों हाथ ऐसे लाइए और अपने हाथ को ऐसे रखिए, प्रेसिंग द पाम्स अवे फ्रॉम यू एंड मूव टू द लेफ्ट, जैसे आप दीवार को पुश कर रहे. फिर मूव टू द राइट, लेफ्ट एंड राइट. आप ये एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हो. लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट. एक लास्ट टाइम, लेफ्ट एंड राइट एंड कम डाउन. ब्रिंग योर हैंड्स. आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि
आपने कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, और देखिए सब सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ मूवमेंट है। और मोशन इज लोशन, ये मेरी टीचर है शेरी, उसका फेवरेट सेंटेंस है। मीन जितना मोशन होगा उतना बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, और हमारी बॉडीज को, हमारे जॉइंट्स को ये फ्लूइड चाहिए, नहीं तो वो कड़क कड़क की आवाज आती है, कभी घुटनों से, कभी एल्बो से। तो जितना आप मूव करोगे उतना ज्यादा हमारा मतलब जो बॉडी है उसमें फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड पैदा होता है। इसलिए मूव करते रहना है, कोई भी मूवमेंट करो, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही करना है, लेकिन मूव करते रहो, ऊपर नीचे चलो, हाथ पांव हिलाओ, ऊपर नीचे ले जाओ। और अब हम करेंगे एक और लाइफ फोर्स एक्सरसाइज। सो इसमें क्या है, आप कुर्सी को पकड़िए लेफ्ट हैंड से, टेक योर राइट हैंड अप एंड come down. Once again, right hand up and bend to the left and come down. And now we go up, take our left hand up, right hand se kursi pakdi hue and move to the right. Once again, left hand up and move to the। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जो हमारे बॉडी है, इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनमें क्या हो गया, क्योंकि हम सारा दिन हमारा पोस्चर ऐसे हो गया है, ऐसे बेंड रहते हैं, तो हमारी लंग्स को, हमारे स्टमक को, किडनीज को जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस। तो स्पेस कैसे क्रिएट हो सकती है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, हाथ ऊपर दूसरा हाथ, जैसे आप कोई फ्रूट को पेड़ से कुछ तोड़ रहे हो, तो राइट हैंड अप, एक फ्रूट को तोड़ा और नीचे, लेफ्ट हैंड अप, फ्रूट को तोड़ा एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर एंड नीचे, राइट हैंड ऊपर एंड नीचे। ये तो आप दिन में जितनी बार करो उतना अच्छा है, इससे स्पाइन में भी बहुत रिलीफ मिलता है, और जो हमारे लंग्स हैं इसमें कैपेसिटी बढ़ती है, स्पेस आता है, स्पेस बहुत जरूरी है हमारे बॉडी, इसलिए स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्ट्रेच, आर्म्स को स्ट्रेच करो, आगे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और सर्कल करो, कुछ भी, बट स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो हमारी इंटेंशन, आज हमने जो इरादा बनाया कि 20 मिनट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें याद रखना दैट स्ट्रेचिंग जरूर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। सो अब हम करेंगे जस्ट नमस्ते एंड वी विल डू सन सर्कल्स। सूर्य नमस्कार कुर्सी पे भी होता है, मे बी 2-3 सेशन मैं वो भी दिखा दूंगी। तो ब्रिंग योर हैंड्स इन नमस्ते। अभी हमारा एक्चुअली एयर योगा का सेशन चल रहा है, आपने आई डोंट नो एंड कितना पे सब्सक्राइब करा, कम टू सेंटर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमारी एक वीडियो कॉल चल रही है, सर्कल एंड come up, circle and down. ये सर हमने होस्ट किया हुआ है, अभी एक कॉल, वीडियो कॉल चल रही है, Circle and down. Come up, वेबिनार circle and। सीनियर। और अब हम करेंगे क्लाइंबिंग रोप। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे रोप को क्लाइंब करते रहते, पेड़ों को क्लाइंब करते, तो हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। इमेजिन एक मुट्ठी के ऊपर एक मुट्ठी आपने रखी है, और अब हम ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे हमने एक रस्सी पकड़ी है। सो 1 और 2, और आप जैसे पुल कर रहे हो इमेजिनरी, 3 4 5 6 7 8, मुट्ठी खोलो, बंद करो, रस्सी को खींचो, 11 एंड 12। और करेंगे एक बार, इससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, और एक्सरसाइजेस शोल्डर्स, आर्म्स। फिर से दोनों पाम्स को ऐसे, मुट्ठियों को ऐसे रखो एंड पुल द रोप, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And now we will do diagonal reaches. Last 2-3 exercises let's do, and then we'll open it for questions. So दोनों हाथ से, and bring your right hand to your left wrist. Come back, left hand to right hand. Come back, left hand, बहुत हल्के से. Remember, always listen to your body.
and back, right hand to left hand, back, left hand to right hand, back, left hand to right hand, back, and left hand and back. And now just pulse your arms. जैसे आप बॉल को प्रेस करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And आप palms ऊपर करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Can you feel your heart rate has increased? Just rub your arms. And now we'll do one interesting movement, waves. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, कुछ हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के अंदर सिनेप्सेस हैं उसमें कभी कभी ब्रेक हो जाता है. उनको कैसे एक्टिव रखना है हमारे ब्रेन. सो हमें ऐसी मूवमेंट्स करनी चाहिए जिससे माइंड और बॉडी एक साथ है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट हैंड टू राइट शोल्डर. ठीक है, सॉरी, राइट हैंड टू लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड टू राइट शोल्डर. Now, left hand to left knee, right hand to right knee. Just listen to my instructions. Left hand to right shoulder, left hand to left shoulder, left hand to left knee, right hand, right shoulder, right hand, left shoulder, right hand, left knee, right hand, right shoulder, right hand, right. So these are exercises which are very good for the brain and for mind-body coordination. And now let's do a small asana, part of the asana, the Garudasana, or the eagle pose. So just bring your left arm, so if the arm is at right angles and 90 degrees, ऐसे मेरी arm सामने. और अब आप तो आपकी राइट आर्म है उसको इसके नीचे से ले जाना और दोनों पाम्स को आपको ऐसे लाना. अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ऐसे रखें. और अगर आप और एक कोई तरीका कर सकते तो आप दोनों पाम्स को एक साथ ऐसे रखें. नहीं कर सकते तो आप ऐसे रख सकते. और जो लोग भी थोड़ा बहुत योगा करते हैं, लेफ्ट आर्म को ऐसे, राइट उसके नीचे से, एंड जस्ट bring both your palms together and close your eyes. हमारा जो योगा मैं करती हूँ उसमें एक एफर्मेशन होती है हर आसना के साथ. और इसकी एफर्मेशन है अपने मन में, just pay attention. At the center of life's storms, I stand serene. इसका मतलब है कि मेरे आसपास जो भी तूफान उठ रहे हैं, मैं उन सब के बीच में एकदम शांत हूं. जैसे at the center of life's storms, I stand serene. अब दोनों अपनी आर्म्स को अलग कीजिए और जैसे ईगल होती है दोनों हाथ लेके अपने ऊपर से and bring them down and hold your chair. Sit comfortably back in your chair. एक बार फिर हम अपने जो हमने इरादा किया है और जो इंटेंशन सेट किया है दैट रोज हम 20 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे ही. ये हमारी इंटेंशन होनी चाहिए. लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाइफ को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और हम इस टाइम का बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. सो 20 मिनट्स, 10 मिनट्स मॉर्निंग, 10 मिनट्स इन द इवनिंग. इतना एक्सरसाइज जो मैंने की है इसमें मुझे ही पसीना आ गया थोड़ा बहुत. तो अगर आप इसको डिलीजेंटली करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा. रिमेंबर, मोशन इज लोशन. कीप ऑन मूविंग. चाहे आप चल रहे हो, थोड़ा टांग हिला ली, हाथ हिला लिए, जैसे डब्बा खोलते हैं, और कुछ नहीं तो डब्बा खोलो और बंद करो. इससे पूरी ये जो हमारी रिस्ट है और हमारे फिंगर्स हैं बहुत आराम. और मुझे 4 साल होने वाले हैं जब से मैंने चेयर योगा सिखाना शुरू किया. एंड मेरा बहुत मन है कि जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं इसको फॉलो करें और चेयर योगा को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं. और अगर आप लोग किसी को जानते हैं उनको भी इसके बारे में. और अब धीरे धीरे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालेंगे तो आप लोग सब देखिए.
And now, before we end, this is a time of great difficulty for the world, so we will pray for the entire world. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhave. May all beings be happy. May all beings be free of disease. May all beings see what is good and auspicious, and may no one suffer. Om Shanti, Shanti, Shanti. So thank you very much. और अगर आपके कोई question है तो आप chat box में पूछ सकते हैं. Then Archana can just tell me the questions. Yeah, thank you, Jyoti. It was a wonderful session. In fact, Thanks. I was following you. I got a phone call, but I also doing the movements on my chair. So Oh, any great. questions? Anybody has any questions? मैं पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ जी, पूछिए. एक तो ये पूछना था, एक तो जय मुझे इस समय ना बड़ा फ्रोजन शोल्डर. हेलो, हाँ जी, बोलिए सर. फ्रोजन शोल्डर राइट साइड में है, तो उसकी भी कुछ खास एक्सरसाइज होंगी? So Jyoti, you got the question. Basically, he is I got. frozen shoulder. But there are special exercises for the frozen shoulder, and one has to be very careful. So probably मैं 2-3 exercises का एक छोटा सा video बना के I can share, because I don't want to take any chances, because this is a difficult situation. तो Yes. छोटा सा. हाँ जी. आप अर्चना जी को वीडियो भेज दीजिए, वो मुझे भेज देंगे. हाँ, मैं छोटा सा एक वीडियो बना के कुछ राइट अप आपको लिख के दूंगी. आप मेरा नंबर ले सकती हैं दोस्तों. हाँ जी, बहुत कॉमन है, इसलिए हम लोगों को खास सिखाया जाता है कि फ्रोजन शोल्डर. आफ्टर लॉकडाउन पर्सनली आल्सो. हाँ जी. आफ्टर लॉकडाउन आई वुड लाइक टू मीट यू पर्सनली. हाँ, जरूर सर, जरूर मिलेंगे. और मैं करके दिखाऊंगी. फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन एलिमेंट है एज वी ग्रो ओल्ड. तो बहुत तकलीफ होती है, सारी रात ना मैं सो नहीं पाता. हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ. तो अर्चना, I will do a special 3-4 exercises for the frozen shoulder. So probably I'll share it with you tomorrow, which you can share with him. हाँ जी, yes, sure. And अगर any other ailments which you would like Jyoti to demonstrate exercises for? knee pain है, knee joint, hip joint, इनकी भी खास exercises हैं which we really. Hip joint तो डॉक्टर नंदा जी मेरा replace the right hip. Oh, I see. Okay, ठीक है. Okay. तो आप जो वीडियो, इनका नंबर ले लीजिए, आप मुझे डायरेक्ट भेजिए प्लीज. हाँ, मैं भेज दूंगी, मैं ले लूंगी, अर्चना से ले लूंगी. My name is दिलीप कुमार. अच्छा जी, अच्छा. आंटी सर, हम सबको भेज देंगे. Don't worry. हाँ. Everybody. Jyoti, somebody is asking what is the name of your teacher who has taught? Sherry Zack. Yeah, so I did my course from the US, and the name of the academy is Yoga Vista Academy. And the name of my teacher is Sherry Zack Morris and Justine. They are two ladies, and a lot of their videos are available even on YouTube. Everybody is free to watch them. So Sherry Zack ZK Morris is her name, my teacher's name. Okay. You can also email us your queries if you have any. We would like to also get feedback on how was this session. If anybody wants to type in the chat window or send us separately any recommendations, we are very keen to hear from you. Also, besides yoga, if there are any other kind of sessions, like we did a doctor's talk, so we are definitely planning more of the health talks on the webinar. But if you have any suggestion on how to do something more fun on the webinar, please do drop in a message and we'll try to see how we can execute it. And I also have one request.
We are also doing a study right now on impact of lockdown on the elderly and their caregivers. So we would be sending you this link on. It's a small survey. It will take about 10 minutes. So we'll be sending you this link on email also, and I think some of you would have received it on your WhatsApp messages. So please do take out time. Dr. Jayashree is leading that effort, and it would go a long way in understanding the needs of seniors further. For example, let me just share with you. I never imagined that I would ever do a webinar with senior citizens and I would be able to get their attention. But I think necessity is the mother of invention, and people are already learning how to use these tools. So I think we should not limit ourselves with the capabilities we have in ourselves. Always keep trying. So please do drop in your suggestions, and any feedback is more than welcome. Okay, if there are no more questions, then we can end this session. Anybody wants to say anything? 20 minutes जरूर करनी है exercise सबको. Absolutely. Yeah. Okay, everyone, thank you so much. We'll also put the recording of this video on our YouTube channel and we'll send you the link. Thank you so much. Yeah. Bye, Archana. Thank you, everyone. Thank you. Thanks.